Our today's topic is boiling point, which can be defined as the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or some external pressure is called as boiling point. यानी वो वाला टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर जो उसके ऊपर अप्लाई किया गया है उसके बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। क्योंकि डेफिनेशन में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेपर प्रेशर को समझना पड़ेगा कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। The vapor pressure of a liquid can be defined as the pressure exerted by the vapors of a liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. In order to understand the vapor pressure, हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। We have a container and we have a liquid sample inside this container. And we already know that the evaporation takes place from the liquid surface at all the temperatures. So if we supply the heat energy to this liquid sample, what will happen that the kinetic energy of the liquid molecules will goes on increasing. और फिर क्या होगा कि यही high kinetic energy के molecules they will leave the liquid surface and they will be get converted into its vapors, जिसको मैं यहाँ पे dots की form में represent कर रही हूँ। After some time, some of these vapor will lose their kinetic energy and they will be get condensed back into its liquid state. तो अब हमारे पास दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली यहाँ पे चल रहे हैं। एक तो इवोपोरेशन है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रही है इनटू इट्स वेपर फॉर्म। दूसरी हमारे पास कंडेंसेशन है। ये जो वेपर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर converting back into its liquid state. So when the equilibrium will be achieved between these two processes, यानी जब rate of evaporation will become equal to the rate of condensation, तो इस point पे यहाँ पे जो vapors मौजूद होंगे वो जो pressure apply करेंगे, चाहे वो on the wall of the container हो, चाहे वो on the surface of this liquid sample हो, that pressure will be called as a vapor pressure of that specific liquid. Now moving towards the explanation of the boiling point, and again we have to concentrate on this diagram. This is a container and we have the liquid sample inside this container. ठीक है, जब हम इस liquid sample को heat energy supply करेंगे तो हमारे पास automatically क्या होगा, the kinetic energy of the liquid molecules will become high and they will be start getting converted into its vapor form. ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि लिक्विड की सरफेस पे एक तरह का प्रेशर डेवलप हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंटरनल प्रेशर और द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड सैंपल। अब हमें ऑलरेडी मालूम है कि इस कंटेनर के ऊपर बाहर एक हवा का प्रेशर भी होगा जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे रहे हैं। सो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, when the internal pressure or the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure or the atmospheric pressure, so this temperature will be called as a boiling point of the liquid, और इस point पे आके आपका जो liquid होगा वो boil करने लग जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बात माइंड में आती है कि हमें पता है कि जब भी कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है इट बिकम्स कांस्टेंट। चाहे आप उसको कितना भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर उससे ऊपर नहीं चढ़ता, वो उसी फिक्स लेवल पे लगा होता है। तब उसकी क्या रीज़न है, हमें ऑलरेडी पता है कि व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एंड हेंस द टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। But at the boiling point, the kinetic energy of the molecule becomes maximum and any further heating at this stage will not increase the temperature. This heat will be used to break the intermolecular attractive forces and convert the liquid into its vapors.
That is why the temperature of the liquid remains constant at its boiling point. इसका ये मतलब है कि जब भी कोई लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेता है तो उसके बाद आप नीचे से उसको जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनकी ब्रेकडाउन में यूज़ होगी और उन मॉलिक्यूल्स को अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में यूज़ होगी. सो दैट इज़ वाई कि आपके पास जो टेम्परेचर हो जाएगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. इसके बाद एक दूसरा जो फिनोमेना है जो ऑब्ज़र्व किया जाता है वो ये होता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है तो हमारे पास लिक्विड्स में बड़े बड़े बबल्स जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं जो लिक्विड की सरफेस पे आके बर्स्ट होने लगते हैं. सो उसकी क्या रीज़न है? द बबल्स ऑफ वेपर्स विच आर फॉर्म्ड इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड have greater internal pressure than the atmospheric pressure on the surface of the liquid. This thing makes the bubble to come out of the liquid and burst upon the surface. Thus, a constant stream of bubbles comes out at a boiling point. अब आपने माइंड में ये बात रखनी है कि किसी भी लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्टार्ट में उस कंटेनर में छोटे छोटे बबल्स राइज होते हैं. अब उन बबल्स को आप इन बबल्स के साथ मिक्स नहीं करोगे. वो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे छोटे छोटे बबल्स राइज होते हैं लिक्विड की सरफेस पे आके, वो असल में उसमें जो डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं वो होती हैं. बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो लिक्विड में अगर कोई डिज़ोल्व्ड गैस होगी तो इनिशियल स्टेज पे उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी एंड दैट विल राइज टूवर्ड्स द लिक्विड सरफेस. मगर जो बड़े बबल्स हमारे पास बनते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो आपके पास उसी लिक्विड के वेपर्स होते हैं जिनका इंटरनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सटर्नल प्रेशर से. तो ये क्या करते हैं, ये फोर्स करते हैं बबल्स को टू कम आउट ऑफ द लिक्विड एंड बर्स्ट ऑन द सरफेस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो बॉइलिंग पॉइंट का है वो ये है दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड कैन बी यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी चीज़ की प्योरिटी को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम उसको चेक कर सकते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट. The first one is intermolecular attractive forces. Greater the intermolecular attractive forces within a liquid sample, greater will be the boiling point of that liquid. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मेंशन की है वाटर की जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा हुआ है 100 सेल्सियस, और साथ में मैंने दूसरी एग्जाम्पल मेंशन की है हाइड्रोजन फ्लोराइड की जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 19.5 सेल्सियस. अब वजह क्या है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई है और HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के मुकाबले में काफ़ी लो है. द रीज़न इज़ द प्रेजेंस ऑफ द हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द वाटर सैंपल एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन फ्लोराइड. आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं दैट द वाटर हैज़ द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू द HF मॉलिक्यूल्स. दैट इज़ वाई बिकॉज we have the greater intermolecular attractive forces in the water, so it will be having the higher boiling point, and we are having the low intermolecular attractive forces as compared to the water in the HF. That is why its boiling points is lesser than the water. The next factor is the nature of liquid. Because we have two types of the liquids, the first one are the polar one and the other one are the non-polar one. तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, आप इसको रिलेट कर सकते हो विद द फर्स्ट पॉइंट. जो पोलर लिक्विड्स होंगे दे विल बी हैविंग द ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, सो ऑटोमेटिकली देयर बॉइलिंग पॉइंट्स विल बी हाई. जो नॉन पोलर लिक्विड्स होंगे दे विल बी हैविंग द लेसर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स विल बी लो. अगर आप एग्जाम्पल को चेक कर लो,
वाटर क्योंकि वो एक पोलर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हमारे पास आ रहा है, 100 सेल्सियस आ रहा है। जबकि ईथर वो हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जस्ट कितना है, 34.6 सेल्सियस। क्योंकि ईथर नॉन पोलर है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। जबकि वाटर हमारे पास एक पोलर लिक्विड है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। बिकॉज डेफिनेशन में भी हम ये बात कर चुके हैं कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा सो हम कहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया है। तो ऑटोमेटिकली अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, जैसे कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो वाटर आपका बॉयल करेगा 100 सेल्सियस सी पे। लेकिन अगर इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम रिड्यूस कर दें और 0.425 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले आएँ तो आपका वही वाटर का सैंपल अब बॉयल करने लग जाएगा 72 सेल्सियस पे। ठीक है, तो क्यों बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि हमने उसके एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ किया। एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो ऑटोमेटिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, एंड द फर्स्ट एप्लीकेशन इज द प्रेशर कुकर विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इंक्रीज्ड प्रेशर। अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर का फैक्टर डिस्कस किया और हम लोगों ने ये बात कही कि when the external pressure increases the boiling point also increases। ठीक है, अब इसका ये मतलब होगा कि उन इलाकों में जिनमें एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कम होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होगी, तो उन एरियाज़ में पानी 100 सेल्सियस के बजाय लोअर टेम्परेचर्स पे बॉयल करेगा। और ऑटोमेटिकली अगर हम कोई कुकिंग करना चाह रहे हैं सो इट विल टेक मच मोर टाइम, बिकॉज वहाँ पे अगर आप पानी में किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हो सो हायर एल्टीट्यूड पे क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है तो वही वाटर जो होगा कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बॉयल करने लग जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई द कुकिंग विल टेक प्लेस मोर टाइम। सो in order to overcome this problem we have to use such a container in which we can generate an external pressure and we can evaluate the boiling point of that liquid। ठीक है, so अब वो हम कैसे करेंगे? The boiling point of the water can be raised by using a pressure cooker। अब प्रेशर कुकर को अगर आप इसकी डायग्राम को भी चेक कर लो, ये इस तरह का एक क्लोज कंटेनर होता है। ठीक है, हम कोई भी सैंपल पकाने की जो चीज़ होती है हम डालते हैं और उसमें हम वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम प्रेशर कुकर के जो ढक्कन है उसको बंद कर देते हैं तो इसके अंदर रबर की कोटिंग होती है जो बिल्कुल इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट कर देती है और यहाँ पे इसके वाल्व लगे होते हैं जो इनिशियली क्लोज होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे सो द लिक्विड विल स्टार्ट टू कन्वर्ट्स इनटू इट्स वेपर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर की सरफेस पे जब काफ़ी सारे वेपर्स जमा हो जाएंगे तो यहाँ के जो वाल्व हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं और यहाँ से कोई भी आपके वेपर्स बाहर नहीं जाते जब तक ये वेट हिलने ना लग जाए। These vapors formed inside the pressure cooker will now act as an external pressure for this liquid which is present beneath। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में वेपर्स बन चुके हैं, एक्सटर्नल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ये वाटर सैंपल क्या करेगा, ये नीचे से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि अब इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो राइज हो चुका होगा। अगर नॉर्मली वो 100 सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर में हमने यहाँ पे जो वेपर्स जनरेट किए हैं उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगा और वही वाला वाटर अब 100 सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे बॉईल करने लग जाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हमारे पास वाटर में जो चीज़ पकी होगी, क्योंकि हीट की जब एब्जॉर्प्शन होगी तो उस चीज़ तक भी तो वो हीट कंटेंट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, एंड ऑटोमेटिकली इट विल बिकम टेंडर एंड इट विल बिकम सॉफ्ट। यहाँ पे मैंने आपकी बुक की कुछ एग्जांपल मेंशन की है। उन्होंने
वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे चेक किया है। जैसे कि सी लेवल पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसको हम 1 ATM के तौर पे लेते हैं। तो हमारे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी मैक्सिमम होगा, दैट विल बी द 100 डिग्री सी। अगर आप मरी पे चले जाओ तो क्योंकि अब आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हो और हमें पता है कि जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है हवा का दबाव कम होता जाता है, तो मरी में आपका एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 0.921 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो मरी में वही आपका वाटर सैंपल बॉयल करेगा 98 डिग्री सी पे। अगर आप मरी से भी ऊपर की तरफ चले जाओगे, माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे, तो वहाँ पे हवा का दबाव और भी कम हो जाता है और एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 0.425 तक पहुँच जाती है, जो ऑलमोस्ट सी लेवल का हाफ निकलती है। तो वहाँ पे आपका जो वाटर का सैंपल होगा वो बॉयल करेगा 72 डिग्री सी पे। तब अगर आप कोई चीज़ इन तीनों एरियाज़ में पकाओगे तो ऑटोमेटिकली सी लेवल पे उस चीज़ को ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, जबकि माउंट एवरेस्ट पे उस चीज़ को लो हीट एनर्जी सप्लाई होगी। सो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की कुकिंग सी लेवल पे इजी होगी, जबकि माउंट एवरेस्ट पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। एंड विदाउट यूजिंग द प्रेशर कुकर टाइप मटीरियल it will be not possible for us to cook that substance easily. The next application is vacuum distillation, which is an example of the reduced pressure. Vacuum distillation is defined as the distillation carried out at the reduced pressure. जिस तरह प्रेशर कुकर में हमने एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ किया था, वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करेंगे और हम उस चीज़ को बॉयल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैंने दोबारा से लिखी है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी आपका बॉयल कर रहा है 100 डिग्री सी पे, मगर 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका यही वाला जो वाटर का सैंपल है वो 82 डिग्री सी पे जाके बॉयल करेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ द वैक्यूम डिस्टिलेशन, दैट वी यूज द वैक्यूम डिस्टिलेशन फॉर विच पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिड्यूसेस द टाइम फॉर द डिस्टिलेशन। अगर आप किसी भी चीज़ की डिस्टिलेशन करना चाह रहे हो तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम उस चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको अटेन करते हैं और उसको उसके वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन प्योर वेपर्स को हम कलेक्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए डिस्टिलेशन। तो अगर आप किसी चीज़ को लो टेम्परेचर पे बॉयल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका जो टाइम होगा डिस्टिलेशन का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। The second advantage is it avoids the thermal decomposition of many compounds. Now what is thermal decomposition? यानी कि अगर आप किसी चीज़ को इतना हीट सप्लाई करो कि उसकी डिकम्पोजिशन हो जाए, उसकी केमिकल नेचर ही चेंज हो जाए, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन का एडवांटेज ये है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन को अवॉइड करता है, उसको रोकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है विच इज़ कॉल्ड एज ए ग्लिसरीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास निकलता है 290 डिग्री सी, ठीक है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद 1 ATM की वैल्यू है। 1 ATM पे अगर आप इसको बॉयल करना चाहते हो तो कितने तक टेम्परेचर को लाना पड़ेगा, 290 डिग्री सी तक, बट इट डीकम्पोजेस एट दिस हाई टेम्परेचर। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट तो अचीव हो जाएगा मगर इसी के साथ इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी एंड उसकी जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाएगी। सो इट कैन नॉट बी डिस्टिल्ड एट द 290 डिग्री सी। So in order to avoid the thermal decomposition, the boiling point of the glycerine is decreased by reducing the pressure, and it is made to boil at 210 degree C at 50 millimeter of mercury. So the glycerine is easily purified without breaking. तो ऐसे कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के करीब थर्मल डिकम्पोजिशन का शिकार हो जाते हैं, so in order to avoid their thermal decomposition, we have to make them boil at the lower temperature by reducing their external pressures. So this was all about the boiling point, and with this we are done with our liquid chapter.